Dr. Ajit Kumar Sharmani, my dear students, my dear colleagues, good morning to all of you. It is a matter of absolute privilege to introduce Dr. H.K. Sahajwani, a luminary in the field of education and innovation. With an illustrious career spanning 34 years, Dr. Sahajwani has made remarkable contribution to academia, research, technological advancement. His journey is a testament to unwavering commitment, unparalleled dedication, and relentless pursuit of excellence. Dr. Sahajwani's academic journey began as a lecturer in physics at SD College Panipat, where he dedicated 18 years of his life. He later assumed the role of head of physics department for 15 years, leaving an indelible mark on the institution. His commitment to education extended to the national level as he served as a member of Board of Studies at Kurukshetra University. Dr. Sahajwani's passion for knowledge led him to develop cutting-edge physics courses, including pioneer work in nanotechnology, syllabus development, innovator, and a researcher. Dr. Sahajwani's contribution to field of physics are exemplary, with over 100 research papers published in esteemed national journals. He spearheaded the development of innovative experiments in physics using Arduino, pushing the boundaries of practical learning. His leadership extended to curriculum development, including courses in chemistry, mathematics, engineering for IEC University. Dr. Sahajwani's administrative acumen is reflected in his role as head of Applied Science Department and Dean Academics at IEC College of Engineering and Technology. He undertook infrastructure planning for applied sciences and all BTech courses, ensuring a conducive learning environment. As the director of AP IIT SD India, he contributed to the growth of Computer Engineering College, affiliated with Stanford University UK and recognized by AICTE. Dr. Sahajwani's dedication to education extended to authoring textbook for classes 11, 12, further enhancing the quality of education. He is also known for his influential workshops and conference presentations impacting the academic community profoundly. Dr. Sahajwani's exceptional contribution have earned him accolades, including the prestigious Man of the Year award from American Biographical Institute. He is life member of Indian Association of Physics Teachers and Indian Society for Technical Education, showcasing his commitment to educational organization. His technical prowess extends to software development, where he created operational software for sugar mills, exporters, accounting, and physics experiments. His expertise spans multiple programming languages and application software, including Arduino programming, showcasing his adaptability to emerging technologies. Dr. Sahajwani has been an instrumental figure in fostering academic and administrative excellence. He introduced mentorship program and guided faculty members, resulting in a more student-centric approach. His relentless pursuit of innovative ideas and projects has nurtured countless students who have won numerous awards in various competitions. So I, on behalf of Department of Physics, DAV College Managing Committee, New Delhi, request now Dr. Ajit Kumar Sharma, our worthy principal, to welcome Dr. Sahajwani. Respected Dr. Sahajwani, resource person of the day, we are very thankful that he has spared his valuable time and come a long distance for our students. And congratulations to the Department of Physics for organizing this event. I am very sure that you will have a wonderful experience and have a practical knowledge of using Arduino boards, and you can say that you will learn by doing.
एंड वन मोर थिंग अबाउट अवर रिसोर्स पर्सन, क्योंकि आज सुबह ही मैं इनसे मिला तो उस टाइम में किसी और स्टेट में कुछ और सोच में चल रहा था, बट जितनी देर भी मैं सर से मिला हूं, सर एज योर नेम सहज वाणी, हम लोग उसको हिंदी में अलग से देखते हैं, सहज अलग वाणी अलग, सोच के देखो, सहज मतलब सरल, वाणी मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सो हम्बल दैट यू विल, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको फील करोगे जब आप सर से इंटरेक्ट करोगे। एंड आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड पर्सनली दैट ही इज हियर, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज अगर टाइम होगा तो मैं नेक्स्ट एक फंक्शन है उसको अटेंड करने के बाद मैं भी ये ट्राई करूंगा कि अटेंड कर सकूं, क्योंकि मेरा भी काफी था कि अड्रीनो बोर्ड्स के ऊपर देखा जाए काम, क्योंकि पिछली बार भी एक करवाई गई थी वर्कशॉप, लेकिन बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इतना टाइम होता नहीं कि हम लोग इसको अटेंड कर सके, बट आज ट्राई करूंगा सर कि मैं भी यहाँ आपके साथ वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर रिसोर्स पर्सन दैट ही इज हियर एंड एक्सेप्टेड अवर रिक्वेस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच। Now I request Dr. Sehajwani to please begin with his talk. Please sir, come on to the desk. Dr. Gurpreet Singh, Head of the Engineering Department, Dr. Gurinder Singh Maan, DP, and my dear children. It is a pleasure for me to come to the DAV College, Bathinda, from Noida. It is my passion to devise new experiments of physics. I am so thankful to the physics department, so thankful to the principal who just sanctioned the event. Maan Sahab continuously was in contact with me, and he guided me what to teach. In fact, I want today that I tell you the principles being used in Arduino. What is Arduino? Of course, I will be telling you later on. But then it is important that I have not come here to make you an expert in Arduino. But I have come here to tell you the basics of the Arduino. And since you are the electronics student, therefore you will be learning a lot about what can be done in electronics using the Arduino. There are large number of the experiments that I have already developed. Of course, I will not be able to cover all those things, but whatever I will be doing today, it will make you sufficiently expert in devising your own devices. In fact, the Arduino is an open source device. Open source, you understand, I think every one of you understands nowadays what is the open source. So everything is given, hardware, software, etc. is available on the net, and you can make use of these devices to make your own hardware. As an electronics person, basically you are not an electronic engineer, you are an electronic person. Engineers will come after. Whatever principles you tell them, they will be using those principles, and they will be making the
various devices. Internet of Things, I think you must have heard. There are large number of the things which are made with the help of the Arduino itself. There are two things, of course, you know. One is the microprocessors and another is the microcontrollers. I hope you know the difference between the two. In case you do not know, but I will let you. I will make you understand. I have brought large number of the Arduinos here. You must be seeing. Of course, I did it just to cover large number of the experiments with you. आप में से सभी लोग हिंदी जानते हैं या कोई ऐसा भी है जो हिंदी नहीं जानता? बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा है, मैं मिक्स बात करूंगा क्योंकि हम इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो बात अच्छी तरह से समझ में आती है। और समझना, बेसिक कंसेप्ट को समझना आसान हो जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो सब आर्डुइनो यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनमें मैंने प्रोग्राम फीड किए हुए हैं पहले ही, और फीड करना क्या होता है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। वो इसलिए किए हुए हैं ताकि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स आपके लिए यहाँ पर दिखा सकूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूँ कि ये करता क्या है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने बेसिकली क्या क्या चीजें सीखनी है, वो आप समझेंगे। आप एक सेइंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग, कि जब आप लर्न करना भूल छोड़ देते हैं, देन आप जीना भी छोड़ देते हैं। आपकी अगर डिजायर, सीखने की डिजायर अगर खत्म हो जाती है तो फिर आप कुछ नहीं रहते। मैं 2004 में रिटायर हुआ एक बार, फिर मैं दूसरी बार रिटायर हुआ 2014 में। आप कहेंगे दो बार कैसे रिटायर हो सकता है आदमी, बताऊंगा। थोड़ी सी कहानी भी जरूरी होती है, सो दैट यू गेट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मी। 2014 के बाद, रिटायर होने के बाद मैंने कहा मैं क्या करूंगा, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वो फील्ड है जिस फील्ड में आज की डेट में, जिस फील्ड के बिना काम नहीं चल सकता, कोई काम नहीं चल सकता। चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे कोई भी और चीज हो, उसमें सभी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। हाफ एडर, फुल एडर वगैरह सब कुछ आपने पढ़ रखे होंगे। आपने रजिस्टर्स पढ़ रखे होंगे, डायोड, ट्रायोड, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, एक्सेट्रा सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। वो सारी चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। आर्डुइनो आपके लिए साउंड से रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट बना सकता है, लाइट से राइट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हीट और हीट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकता है, मैकेनिक्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट करा सकता है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, शायद आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हो, डिटर्मिनेशन ऑफ द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम। वहाँ आप क्या करते थे, सिंपल पेंडुलम में एक सिंपल पेंडुलम रखा दिया, उसकी लेंथ आपने मेजर कर ली और उसको आपने एक तरफ ले जाकर छोड़ दिया और उसका टाइम पीरियड मेजर किया। टाइम पीरियड कैसे मेजर किया? आपने एक छोटी सी स्टॉप वॉच ली, स्टॉप वॉच लेकर आपने इसको छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, जब वो सेंटर पर पहुंचा, आपकी मर्जी है वो, चाहे जब सेंटर पर पहुंचा तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, या आपने एक्सट्रीम पर पहुंचा तब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी,
फिर आपने काउंट करना शुरू कर दिया, अब ये सिंपल पेंडुलम यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर वह एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, और अगर यहाँ से यहाँ तक आया तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। एक वाइब्रेशन में 2 ऑसिलेशन होती है, आपने पढ़ा है। पर आप करते क्या थे, कंटिन्यूसली उसको देखते रहते थे, कंटिन्यूसली देखते रहते थे, और जब 20 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई तो आपने स्टॉप वॉच को बंद कर दिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, फार्मूला कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड G = 4π² × L/T², कि आपने मेजर कर ही लिया है, लेंथ आपने मेजर कर ली है, तो जी। पर आर्डिनो अपने आप करेगा, सारा काम खुद करता है। एक सेंसर होते हैं, IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। उस सेंसर में से जब ये बॉल कोई आपके सामने जाएगी तो वो उसको सेंस कर देगा कि बॉल मेरे पास आ गई है, और उसको सेंस करके वो काउंटिंग कर देगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और समझाऊंगा। अपने आप मेजर कर लेगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पर आएगा, फिर मेजर कर लेगा। तो बार बार ये मेजर कर लेगा, और उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हम इस तरह लिख देते हैं, जो कि बड़ा सिंपल प्रोग्राम होगा और आप बड़े आराम से लिख पाएंगे। उसमें आप उसको क्या कहेंगे कि जैसे ही हमारे पास 10 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए या 20 वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए, ये तो आपको बात डिपेंड करता है, ठीक है, तो आपका वो उसका टाइम बता दें। वो टाइम कैसे बताएगा, तो हमारे पास उसके अंदर जो प्रोग्राम होता है, आर्डिनो का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा आपको समझना होगा, वो भी हम करेंगे। तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली टाइम को मेजर कर लेगा, टाइम मेजर कर लेगा, लेंथ आपने पहले उसको दे दी, तो वो अपने आप ही आपके लिए कैलकुलेट भी कर देगा कि इसका जो वैल्यू ऑफ स्पीड है वो इतनी है। हमारे पास जो सेंसर्स होंगे, सेंसर बेसिकली जो आर्डिनो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये याद रखिएगा। आर्डिनो हमारे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, और एक टाइम में सिर्फ एक काम कर सकता है। माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में यही डिफरेंस है कि माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टाइम में कई काम कर सकता है। जैसे आपके लैपटॉप्स हैं, आपके जो डेस्कटॉप हैं, या आपके इवन आपके जो मोबाइल्स हैं, एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। पर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक टाइम में एक काम कर सकता है, जो भी काम उससे आप करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं उससे काम करवाना चाहता हूँ कि आप टाइम पीरियड मेजर करो, तो सिर्फ टाइम पीरियड ही मेजर करेगा। मैं चाहता हूँ कि टाइम पीरियड मेजर करने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पर किसी मोटर को चला दें, या उसके बेसिस पर किसी लाइट को ऑन कर दे, या कुछ और करना चाहे तो वो कर दे, तो वो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर से हो सकता है। पर अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं, लाइट को ऑन कर दे या कुछ और करना चाहे तो वो कर दे, तो वो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर से हो सकता है। पर अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं, लाइट को ऑन कर दे, दूसरा प्रोग्राम चल पड़ेगा। फिर दोबारा से पहले वाला एक प्रोग्राम आप उसके ऊपर करना चाहते हैं, तो वो फिर उसको लोड करना पड़ेगा। कुछ बार बार आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना कोई भी जो प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, और वो हमने देखना है कि कैसे होगा। दिखाई भी दे रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आर्डिनो से क्या क्या किया जा सकता है। आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ काम ये नहीं कर सकते, कुछ प्रोजेक्ट्स ये नहीं बना सकते। एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने शायद 12th क्लास के अंदर, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक ट्यूब होती थी, उस ट्यूब में पानी डाल दिया, एक लेवल तक पानी डाल दिया,
और उस लेवल तक आपने लेंथ मेजर कर ली पानी की, और एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया। ट्यूनिंग फॉर्क लेकर और उसके माउथ पर जो ट्यूब है उसके माउथ पर आपने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया, साउंड नहीं आई। आपने लेवल ऑफ द वाटर को चेंज किया। One minute please. ये बोर्ड है Arduino R3 जो शुरू से ही चल रहा है। ये हमारे पास मेगा Arduino है, ये मेगा Arduino है। थोड़ा सा फर्क होगा आपके इसकी जो है ना लेंथ को भी आप देख रहे होंगे, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको Arduino बोर्ड तो पहली चीज है जो हमें चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज हमें चाहिए ब्रेड बोर्ड, और ब्रेड बोर्ड के अलावा Arduino बोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक केबल चाहिए। Arduino को इसके साथ कनेक्ट तो करेंगे ना, तभी तो हम प्रोग्राम को उसके ऊपर लोड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें एक केबल चाहिए, और वो उस केबल के बाद हमारे पास तो दिखाई नहीं दे रहे ना, मेरे पास दिखाई दे रही है वो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो हो गया Arduino बोर्ड, दूसरा हो गया ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड कौन सा है? यहाँ पर हमारे पास ये जो जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये जो है हमारे पास वो ब्रेड बोर्ड है। दिस इज ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड में क्या क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये ब्रेड बोर्ड हो गया, ये Arduino बोर्ड हो गया, और Arduino बोर्ड के साथ कनेक्ट करने वाली हमारे पास एक ये केबल हो गई। तीन चीजें बहुत असेंशियल हैं। उसके बाद हमने इससे काम करना है। काम करना है तो हमें क्या चाहिए? सेंसर्स चाहिए। सेंसर क्या होते हैं? जो किसी चीज को सेंस करते हैं। आप मेरी आवाज को सेंस कर रहे हैं, आपके कान जो है वो मेरी आवाज को सेंस कर रहे हैं, और क्योंकि कुछ डाटा पहले ही आपके दिमाग के अंदर है, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो वर्ड आपके ब्रेन के अंदर पहले ही है, तभी आप समझ पा रहे हो, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे पास सेंस कर रहे हैं, आपका कान हमारे पास, आपके कान सेंस कर रहे हैं किस चीज को? मेरे साउंड को सेंस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर खुशबू फैला दें तो आपका जो नाक होगा उस खुशबू को सेंस करेगा। आप किसी चीज को टच करेंगे, आपके उंगलियां जो है वो सेंस करेंगी कि यहाँ कोई चीज है। मैंने यहाँ कर दिया, इसने सेंस कर लिया कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज है, और ये समय मुझे ये ठंडी लग रही है। टेम्परेचर को सेंस करना है, प्रेशर को सेंस करना है। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल प्रिंसिपल होते हैं। आपने शुरू में आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, उससे भी पहले पढ़ा होगा शायद, मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर में क्या होता है? नीचे एक बल्ब होता है, उसके अंदर मर्करी होता है, और एक कैपिलरी ट्यूब होती है। उस कैपिलरी ट्यूब के कुछ साइड तक वो मर्करी जा चुका होता है, और जहां पर भी वो मर्करी लेवल होती है वो आप रीड कर लेते हैं। अगर उसको आप हीट करें तो मर्करी एक्सपैंड करेगा। तो चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ द मर्करी विद द टेम्परेचर, चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ द मर्करी विद द टेम्परेचर इज ए सेंसर। ठीक है, उसने क्या किया? मर्करी की वॉल्यूम को चेंज को सेंस किया टेम्परेचर से। तो जब भी कोई चीज टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, कोई भी चीज टेम्परेचर के साथ चीज होगी, तो वो टेम्परेचर सेंसर बन जाएगा। करेक्ट? इसी
पर आर्डुइनो जो है, आर्डुइनो हमारे पास सिर्फ वोल्टेज को सेंस करता है। ये सिंपल सी बात याद कीजिएगा, ये वोल्टेज को सेंस करता है। तो कोई भी चीज, ऐसा कोई भी डिवाइस जिससे आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, वो आपके लिए आर्डुइनो का एक सेंसर बन जाएगा। मान लीजिए आपने एक ले लिया, आपने एक पीजो क्रिस्टल। पीजो क्रिस्टल को जब आप प्रेस करते हैं तो ऊपर से आपने प्रेशर लगाया, साइड पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाते हैं। तो क्योंकि वो वोल्टेज डेवलप हो गई, तो पीजो क्रिस्टल आपके लिए एक सेंसर की तरह बिहेव कर सकता है। क्या सेंस करेगा वो? क्या सेंस करेगा? प्रेशर को सेंस करेगा। आपने प्रेशर लगाया, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाया, और इधर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए, यानी कि एक वोल्टेज आ गई। जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतनी ज्यादा वोल्टेज आएगी, कम प्रेस करोगे कम वोल्टेज आएगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो जो पीजो क्रिस्टल है वो आपके लिए क्या करेगा पता? आपके लिए प्रेशर को सेंस करेगा। अब आपके जो डायोड्स हैं, डायोड का पीएन जंक्शन होता है, आप जानते हैं। पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन के जो जंक्शन पर हमारे पास एक रीजन होता है। उस रीजन को क्या कहते हैं भाई? डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अगर मैं डायोड को लेकर उसको हीट करूं तो डिप्लीशन रीजन चेंज होगा, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी चेंज होगी, ठीक है ना। जो उससे करंट पहले जो उससे करंट निकलेगा वो चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? जब मैं उसके जंक्शन को हीट करूंगा तो वो जो है ना, वो हमारे पास उसका जो वैल्यू चेंज हो जाएगी और करंट भी चेंज हो जाएगा। अगर उस करंट को मैं किसी रेजिस्टेंस में से पास करूं तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगी या नहीं आएगी? I into R is equal to V. V is equal to IR. It is such a simple thing. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायोड को एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज कर सकता हूं। उस डायोड के जंक्शन के ऊपर अगर आप लाइट गिरा दें, अल्ट्रावायलेट लाइट गिरा दें, जिसकी एनर्जी उसकी बैंडविड्थ से ज्यादा हो, जो लाइट मैं उसके ऊपर गिरा रहा हूं उसके जो बैंड गैप से उसकी एनर्जी जो हो वो बैंड गैप से ज्यादा हो। क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सेंस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। यू हैव ए डायोड, देयर इज ए डिप्लीशन रीजन। अब उसमें क्या होता है भला? आपका एक बैंड गैप होता है, किसी भी चीज का एक बैंड होता है, उसका बैंड गैप होता है। उस बैंड गैप से ज्यादा एनर्जी की अगर मैं कोई लाइट उसके ऊपर गिरा दूं तो क्या होगा? जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और उसकी जो करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। फिर वही बात, जब करंट की वैल्यू चेंज होगी, उस करंट को पास कर दीजिए किसी रेजिस्टेंस में से, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो चेंज हो जाएगी। यानी कि आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं by allowing the light of the energy larger than the band gap to fall on the diode. Not only that, दूसरे भी डिवाइसेज हैं जिसके ऊपर जब ऐसे गिराएंगे तो हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है या जो हमारे पास करंट है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। एक डिवाइस होता है which is called as LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वो एक रेजिस्टेंस है, सिंपल रेजिस्टेंस है, पर वो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स की बनी है। ओके, अब उसके ऊपर जब हम लाइट गिराते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। जब उसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब लाइट गिरेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी कि लाइट से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, और उसमें से अगर आप करंट पास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। मेरे पास एक डिवाइस है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो उस डिवाइस में से करंट पास होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, उसमें से करंट पास होगा।
अब उस रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऐसी है जिसके ऊपर मैं जब लाइट गिराता हूं तो उसका करंट चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, वोल्टेज तो सेम है। रेजिस्टेंस अगर कम हो गई, वोल्टेज आपने सेम लगाई, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो बढ़ा हुआ करंट, ठीक है, हमारे पास क्या करेगा, वो बढ़ा हुआ करंट वोल्टेज की वेरिएशन करेगा, करेक्ट है। जब वोल्टेज वेरिएशन होगी वहां पर तो उसको वो क्या हो रहा है, लाइट को सेंस कर रहा है। लाइट का सेंसर बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि आपने लाइट गिराई, रेजिस्टेंस चेंज हो गई, रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो हमारे पास वोल्टेज चेंज हो गई। अब अगर ये कैमरा चल सकता है क्या, कागज वाला कैमरा, इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास जो स्पीकर है, स्पीकर हमारे पास सेंसर की तरह है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाए। जो मोटर है, डीसी मोटर है, वो भी सेंस करता है। डीसी मोटर में क्या होता है, हम एक एंड पर एक पॉजिटिव लगाते हैं, दूसरे एंड में नेगेटिव लगाते हैं। मैं डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ, तो करंट फ्लो करेगा और हमारी मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी, करेक्ट। पर अगर मुझे उसकी डायरेक्शन घुमानी, उल्टी करनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव को उधर करूंगा, नेगेटिव को उधर, और ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। या तो मैं एक बोर्ड लगा दूं जिसमें आपस में ये कनेक्शन इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, और या फिर मैं मैनुअली उनको चेंज कर दूं। दो तरीकों से किया जा सकता है। पर आर्डिनो से क्या होगा, आर्डिनो में आपके पास वेरियस बोर्ड पॉइंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये कनेक्शन है, ठीक है। पहले मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ जरा। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, बाद में तो ये हमारे पास आ गया भाई आर्डिनो। आर्डिनो में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ होल्स हैं, यहाँ पर कुछ होल्स हैं, यहाँ होल्स हैं, यहाँ पर होल्स हैं, और बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक वो लगा हुआ है, इसका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। दो किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर तो ये हो गया जिसमें ये लगी हुई है, और दूसरा माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास हो गए एसएमडी टाइप हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर हो गए, जिसमें हमारे पास ये जो ये काम करता है वो माइक्रो कंट्रोलर ये आईसी जो है वो वो ये है माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो है वो ये है। एक इस टाइप ये तो आजकल मिलने बड़े मुश्किल हो गए, ये तो मिलते ही नहीं। जब से वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई हैं या चेंजेस आ रही हैं, आप सब लोग जानते ही हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तब से इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। आज की डेट में अगर आप उसमें देखेंगे तो यह शायद 1600-1700 में मिलेगा, ये मुझे 400 में मिला, 400 ऑफ ये। पर ये जो है, ये जो हमारे पास जो है ये सेंसर, ये 700-800 में इस तरह मिल जाता है। जो माइक्रो कंट्रोलर जो है, ये माइक्रो कंट्रोलर आजकल 700-800 में मिल जाएगा, पहले 400-300-350 में मिल जाता था। ये एसएमडी टाइप है, ये यानी कि सरफेस माउंटेड हमारे पास ये आईसी है, सरफेस माउंटेड, सरफेस के ऊपर माउंट किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, मूवेबल है, इसको आप निकाल सकते हैं फिर डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसको निकाल कर दूसरा लगा दिया, दूसरा निकाल कर तीसरा लगा दिया, इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम लोड कर दिया और फिर दूसरा लगाकर उसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम लोड कर दिया, तीसरा लगाकर तीसरा प्रोग्राम लोड कर दिया। हर एक के ऊपर प्रोग्राम अलग अलग लोड किया हुआ है। फिर आप उसको जो आपको पता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम इसके ऊपर लोड कर रखा है, तो वो जब आप प्रोग्राम आपको पता है लोड क्या रखा है, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग आप जहाँ पर चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। समझ गया? अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक साइड है जिस पर D1, D2, D3, D4 लगे हुए हैं। D मीन्स डिजिटल। ये जो होल्स हैं वो हमारे पास क्या है, डिजिटल होल।
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0 से लेकर 13 तक हमारे पास इसमें डिजिटल वो पॉइंट्स और उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे से आप बच्चों को दे सकते हैं नहीं काम तो करते हैं पर इनको देखना चाहिए सर वो डिस्प्ले ही लेके आ रहे हैं 2 मिनट तो अच्छा डिस्प्ले आ रहा है कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे कि कुछ पिन ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा मार्क लगा हुआ है, कुछ पिन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसे मार्क लगा हुआ है ऐसे, वो हमारे पास PWM पिन होते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM पिन आई डोंट नो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। एक पल्स होती है यहाँ से यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ तक आए, ये पल्स हो गई, यहाँ से क्या, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या, ये पल्स हो गई। अगर हम फुल पल्स देते हैं किसी चीज को तो हमारे पास उसके पास सफिशिएंट एनर्जी जाती है। अगर हम 1/5 पल्स दें उसको, 1/5 टाइम के लिए उसको ऑन रखें और बाकी 4/5 टाइम के लिए हम उसको क्या करते हैं, ऑफ कर दें, तो इसका मतलब है हमने जो एनर्जी दी है वो कम दी है, ठीक है ना। फिर हमारे पास एक पिन से मैं क्या करूं कि मैं एक पल्स जो है, पूरी पल्स तो हमारे पास ये है, ये पल्स हो गई, पूरी पल्स का 50% दूं तो वो 50% वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो 50% मैंने किसको देता हूँ, एलईडी को देता हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड को दे देता हूँ। तो लाइट एमिटिंग जो डायोड होगा वो फुल ग्लो नहीं करेगा, 50% ग्लो करेगा। अगर मुझे इसकी ग्लो को चेंज करना है तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि डिजिटल का मतलब होता है 1 और 0। डिजिटल मीन्स 1 और 0। मैं डिजिटल रीड करूंगा तो वो 0 रीड करेगा या 1 रीड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, करेक्ट। मैं इसको कह देता हूँ डिजिटल 0, सपोज मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ डिजिटल 0, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो ग्राउंड हो गया। और दूसरी पिन को कहता हूँ मैं डिजिटल 1, रीड करता हूँ, जब मैं उसको कहता हूँ 1 है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और मैं इसके इन 2 पॉइंट को मोटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एक मोटर ली, उसका एक पिन जो है मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा पिन मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। और मैंने प्रोग्राम के थ्रू इस पिन को 0 कर दिया और इस पिन को 1 कर दिया, तो उसको इस तरफ वोल्टेज मिल गई 5 वोल्ट और इस तरफ मिल गई वोल्टेज 0, ओके। तो वो एक डायरेक्शन में घूमेगा। अब प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 0 कर दूं, वोल्टेज ऑटोमेटिकली चेंज होगी, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम करेगा जो करेगा। और फिर अगर मैंने इसको प्रोग्राम को कहना है कि आप इसको 5 सेकंड के लिए चलाओ, 5 सेकंड के लिए एक साइड में एक डायरेक्शन में चलाओ, 10 सेकंड के लिए दूसरी डायरेक्शन में चलाओ, हो जाएगा। इट विल डू, बट यू विल हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन। आप अगर इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाती है उसको हम प्रोग्राम के थ्रू ही करेंगे, करेक्ट है। अब आर्डिनो तो ये हो गया, उसके साथ ये तो आपने देखिए, ये हमारे पास है ही है। अब इस बोर्ड की बात करते हैं, इस बोर्ड की एक दे दिया